Hi guys, welcome back to teaching channel. Guys, this is my new video and we are gonna to start a new topic in it. So guys, our today's topic is active and passive voice. So let's start without wasting our time. So guys, let's start our today's topic, active and passive voice. Okay, first we will know that defining active and passive voice. Okay, a transitive verb defined as a verb which has an object has two voices, active voice and passive voice. So guys, here what they are saying, that a transitive verb, I have also made a video in which I have separately tell you about the intransitive and transitive verb. So I will the link will be in the description box. Open it and you can watch if you didn't watch it right now. Okay, so I am not explaining it again because I have already made a separate video of transitive and transitive verb. So let's come on to our topic again. So the transitive verb. Okay, so a transitive verb defined as a verb which has an object, जिसमें object हो. Okay, has two voices, active voice and passive voice. Read these sentences. First, a heavy truck blocked the road. Okay, so a heavy truck blocked the road. Let us analyze the first sentence. So guys, what they are saying. So means I am telling you again. वो ट्रांजिटिव वर्ब जो डिफाइन करे ऐसे वर्ब को जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट हो, which has an object, has two voices. उसमें two voices होती है, active voice first होती है and second one is passive voice. अब वो एक एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें बता रहे हैं. आप जैसे देख सकते हैं इधर फर्स्ट लिखा हुआ है अ हैवी ट्रक ब्लॉक द रोड सेंटेंस एंड इसका लिखा हुआ है पैसिव वॉइस दैट इज रिटन द रोड वॉज ब्लॉक्ड बाय अ हैवी ट्रक. सो अभी मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगी. आई विल टेल यू द होल फॉर्मेट बाय विच पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड. ये एक्टिव वॉइस है. दिस इज एक्टिव वॉइस. द फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस फर्स्ट सेंटेंस एंड द सेकेंड वन इज पैसिव वॉइस. नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. इट इज what is the action performed blocked. Oh sorry, it is showing that ये इसी मतलब की सेंटेंस को बता रहा है कि वो एक्शन परफॉर्म जो कर रहा है ब्लॉक्ड, वो मतलब व्हाट इज द एक्शन परफॉर्म्ड, क्या एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है इस सेंटेंस में. एक्शन क्या है, ब्लॉक होना, राइट. सो व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. सब्जेक्ट क्या है वर्ब का, अ हैवी ट्रक. हैवी ट्रक की तो है ना. सो हु परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ ब्लॉकिंग. किसने परफॉर्म करा एक्शन ब्लॉकिंग का, अ हैवी ट्रक ने. सो दस इन द सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑल्सो परफॉर्म्स द एक्शन नेम in the verb. Thus, in the sentence, the subject of the verb also performs the action named in the verb. This sentence is said to be the active voice. When the subject of a verb also performs the action named in the verb is said to be the active voice. The active voice is used with the agent or the doer is to be made prominent. Let us now analyze the second sentence. What is the action performed? Blocked, right? What is the subject of the verb? The road. Does the now first of all अभी इसे रहने दो जो second sentence को analyze कर रहा है. First of all let's analyze the first sentence. You have read the first sentence. What is it? A heavy truck blocked the road. अभी आप फोकस करो फर्स्ट सेंटेंस पे सिर्फ. Don't focus on the second one. Just focus on the first one. A heavy truck blocked the road. Let's read out it. So means action क्या परफॉर्म हो रहा है सेंटेंस में, ब्लॉक्ड. इसमें सब्जेक्ट क्या है, अ हैवी ट्रक, राइट. परफॉर्म कौन कर रहा है ब्लॉकिंग करने का, कौन कर रहा है, व्हाट इज हु इज डूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन ऑफ बीइंग ऑफ ब्लॉकिंग. इट्स अ हैवी ट्रक. Thus,
means thus in the sentence जो subject verb the subject of the verb is also performing the action भी perform कर रहा है वो named in the verb. So this sentence is said to be an active voice, right? When the subject of a verb, जब subject of the verb also perform करता है action named in the verb, जो verb में action जो named हुआ हो in the verb is said to be the active voice. When the subject of a verb also performs the action, जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है जो वो एक्शन भी परफॉर्म करता है, दैट इज नेम्ड द एक्शन इज नेम्ड इन द वर्ब इज सेड टू बी एन एक्टिव वॉइस. द एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एजेंट और द डूअर इज टू बी मेड प्रोमिनेंट. राइट नाउ अब आ जाओ सेकेंड सेंटेंस पर. आई होप यू हैव क्लियर्ड दैट व्हाट इज एक्टिव वॉइस एक्चुअली. एंड मैंने आपको फर्स्ट उससे बताया अ हेवी ट्रक ब्लॉक द रोड कि एक्टिव वॉइस होता क्या है. लाइक मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से समझाया दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब सब्जेक्ट वर्ब का ऑल्सो परफॉर्म्स द एक्शन, वो एक्शन भी परफॉर्म करता है जो वर्ब में नेम हुआ है, तब वो वर्ब कहलाती है एक्टिव वॉइस. और एक्टिव वॉइस तभी यूज़ किया जाता है जब उसका एजेंट या फिर डूअर कह लो जो करता है परफॉर्म करता है इज टू बी मेड प्रोमिनेंट. लेट अस एनालाइज नाउ द सेकेंड सेंटेंस. व्हाट इज द एक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस क्या है? द रोड वॉज ब्लॉक्ड बाय अ heavy truck. What is the action performed? Blocked. What is the subject here? The road. Does the subject perform the action of blocking? No. क्या जो subject है वो perform कर रहा है blocking का action? No. The subject, the roads, does not perform the action of blocking. No. The subject, the road, does not perform the action of blocking. In fact, it receives the action of blocking. We know that it is the heavy truck that performs the action. This sentence is said to be the passive voice. Again, I'm telling you, पहले इसकी definition सुनो. When the subject receives the action named in the verb, when the subject receives the action named in the verb is said to be the passive voice. जब सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन, दैट इज नेम्ड इन द वर्ब इज सेड टू बी द पैसिव वॉइस. अब देखो, जस्ट फोकस ऑन द सेकेंड प्लीज, उससे ही फोकस करते रहो. अपने माइंड में द रोड वॉज ब्लॉक्ड बाय अ हैवी ट्रक को रखो एक मिनट के लिए, बिकॉज आपको पैसिव वॉइस समझना होगा तो आपको थोड़ी देर के लिए काम पेशेंस रहना होगा. जैसे अभी मैंने बताया आपको एक्टिव वॉइस का, ऐसे ही हम आपको बिल्कुल ब्रीफली मैं आपको पैसिव वॉइस भी क्लियर करती हूँ. व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव, जब सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन, जब सब्जेक्ट रिसीव करता है कोई एक्शन जो वर्ब में हो, उस वर्ब को पैसिव वॉइस कहते हैं. लाइक अब अपना एक्शन जो सेंटेंस है उस पर आ जाओ. द रोड वॉज ब्लॉक्ड बाय हैवी ट्रेन. जो थर्ड क्वेश्चन था, डज द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑफ ब्लॉकिंग, कहा था नो. द सब्जेक्ट, द रोड डज नॉट परफॉर्म द एक्शन ऑफ ब्लॉकिंग. ये परफॉर्म नहीं करता एक्शन ऑफ ब्लॉकिंग. इन फैक्ट it receives the action of blocking. ये receive करता है action of blocking. You can see in the sentence the road was blocked by a heavy truck. Here it is mentioned by a heavy truck the road was blocked. So here the action is performed by a heavy truck, not the road. The road is receiving the action of blocking. Okay. So when the subject is receives the action of blocking that is named in the verb is said to be the passive voice. और active voice में क्या था? Active voice में था when the subject of a verb also performs the action. जब subject of the verb भी perform करता है action तो उसे active voice कहते हैं. But जब subject of the verb receive कर रहा है action, then it is said to be a passive voice. That the verb is said to be a passive voice.
तो ये आपको माइंड में रखना है. एंड द पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन इज टू बी मेड prominent. Okay, so guys, I just wanted to tell you that active voice is that which is performed in which when the subject, जब subject of a verb भी perform करता है एक्शन को. लाइक आप देख सकते हैं, आप कंपैरिजन ही कर लो. अ हैवी ट्रक ब्लॉक द कार में और द रोड वॉज ब्लॉक्ड बाय द कार. अ हैवी ट्रक ब्लॉक द कार में जो सब्जेक्ट है वो है अ हैवी ट्रक. जो एक्शन को मतलब कि एक्शन को रिसीव नहीं कर रहा हो, एक्शन कर रहा है वो भी. It is performing the action, so it is an active voice. And it is same if we will see the second sentence, the road was blocked by a heavy truck. जिसका है subject the road. It is performing the action of blocking? No, it is not performing the action of blocking. In fact, it is receiving the action of blocking. So I hope you have understood what is the difference between active and passive voice and what is active voice and passive voice. Let's move on to their difference between active voice and passive voice. अभी ये आपको समझ में आ गई कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस होता क्या है. पर अभी हम ये जानते हैं कि उसमें डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में. सो लेट्स रीड आउट इट. एक्टिव वॉइस क्या है? इट इज़ अ नेचुरल एंड प्रेफरेबल टू यूज एक्टिव वॉइस. पैसिव वॉइस इज प्रेफर्ड when we do not know the doer of the action, when the action is more important than the doer. Third, informal writing for writing scientific reports, headlines, and advertisements. Formal notices or making announcements, newspaper reports, etc. So first part, what is active voice and passive voice difference में. एक्टिव वॉइस कि जो इट इज़ नेचुरल, ये नेचुरल होता है और प्रेफरेबल होता है टू यूज़ एक्टिव वॉइस. मतलब ये तो बहुत ही इजी पॉइंट है एक्टिव वॉइस का डिफरेंस के लिए, कि मतलब कि वो कह रहे हैं कि एक्टिव वॉइस बहुत नेचुरल है, सभी यूज़ करते हैं उसे, और ये बहुत प्रेफरेबल भी है. राइट, मीन्स प्रेफर किया जाता है सबसे, मतलब सब एक्टिव वॉइस को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ज़्यादा पैसिव वॉइस को मतलब इतना प्रेफरेबल नहीं है वो. बट पैसिव वॉइस इज प्रेफर्ड व्हेन फर्स्ट पॉइंट है कि जब वी डू नॉट नो द डूअर इन द एक्शन ऑफ द एक्शन. एक्शन जो हो रहा है उसका डूअर नहीं पता होता हमें. या फिर दूसरा है पॉइंट व्हेन द एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डूअर. जब एक्शन मोर इम्पॉर्टेंट होता है डूअर का से, सो तब हम यूज़ करते हैं. थर्ड, इनफॉर्मल राइटिंग के लिए, जैसे साइंटिफिक रिपोर्ट्स के लिए, हेडलाइंस के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, फॉर्मल नोटिस के लिए, और मेकिंग अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एटसेट्रा के लिए. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट. अब है द emphasis of the verb is on the subject. The emphasis of this verb is on the object. अब देखिए, ये बहुत ही मैंने आपको अभी भी बताया था ये, और ये बहुत ऑब्वियस पॉइंट है. एक्टिव वॉइस में वर्ब एम्फसाइज करती है सब्जेक्ट पर, और पैसिव वॉइस में वर्ब एम्फसाइज करती है ऑब्जेक्ट पर. इट इज़ वेरी सिंपल, ऑब्वियस. एज यू कैन सी, हमने जो भी एक एग्जाम्पल से समझा था, अ हैवी ट्रक ब्लॉक द रोड, उसमें ये एक्टिव वॉइस है कि अ हैवी ट्रक ब्लॉक द रोड. इसमें जो ब्लॉक्ड वर्ब है वो सब्जेक्ट पर एम्फसाइज करती है, अ हैवी ट्रक पर. But as you can see, the passive voice sentence, the road was blocked by a heavy truck. Here, the verb is emphasizing, the verb blocked is emphasizing on the object, that is a heavy truck. So, this is what the point is wants to say. Now, let's move on to the third point. Active verbs are simple and direct, so communication is easy and effective. Passive verbs are indirect, so they may be less effective. Now guys, please don't write this, that what is, don't write in the comments that what is direct verb and indirect verb.
because I have a separate video. I have made a separate video of this topic, which you will get if you will go on my channel. If you will visit on my channel, you will go on the playlist, or you can see the videos area, or you can go to my playlist. There you will get this video. So let's move on. Let's come on to our topic again. Action verbs are simple. एक्टिव वर्ब्स आर सिंपल एंड डायरेक्ट. ये बहुत सिंपल और डायरेक्ट होते हैं, सो कम्युनिकेशन इज ईजी एंड इफेक्टिव. बट पैसिव वॉइस आर इनडायरेक्ट होते हैं वो, इसलिए जो मे बी द जो कम्युनिकेशन होती है वो मे बी लेस इफेक्टिव हो. नाउ देयर इज एग्जांपल्स ऑफ बोथ. एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉइसेस: मिस्टर बोस विल रिनोवेट द हाउस, एंड पैसिव वॉइस: द हाउस विल बी रिनोवेटेड बाय मिस्टर बोस. Mr. Bose will renovate the house. Here, Mr. Bose करवाते हैं renovate house को, करवाएंगे renovate house को. So here, the action is also performed by the subject. And if you will see the second word, the house will be renovated by Mr. Bose. मतलब कि हाउस को रेनोवेशन करवाई जाएगी हाउस की मिस्टर बोस के द्वारा. So here, by Mr. Bose. So here the subject is the house, which is receiving the action and not performing the action. So here it is passive voice. Let's come to our next topic, that is rules of conversation from active to passive voice. Let's move on. Okay, now let us revise the rules of conversation from active to passive voice. First, the positions of the subject and the object of the verb are interchanged. The object of the verb is the active voice becomes the subject in the passive voice, and the object of the verb in the active voice becomes the subject in the passive voice. Now, अब मैं आपको इसे समझाती हूँ. The positions of the subject and the object of the verb are interchanged. ओके, तो अब क्या पढ़ रहे हैं हम रूल्स पढ़ रहे हैं कन्वर्जन के एक्टिव से पैसिव वॉइस के लिए. सो जो पहला है, ये फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये क्या कह रहा है कि पैसिव वॉइस में जो पोजीशन होती है सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की वो इंटरचेंज हो जाती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का एक्टिव वॉइस में वो बिकम हो जाता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, और जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में. दैट इज इन द फर्स्ट लाइन इट इज मेंशन्ड इन द शॉर्ट. नाउ एग्जाम्पल जैसे है, वेरिका रोट 3 letters. 3 letters are were written by वेरिका. सो हेयर यू कैन सी कि पहली बात तो हमने वेरिका को लास्ट में लिखा है, मतलब हमने ऑब्जेक्ट को बना दिया है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है. हियर आप ये सोचोगे कि वर रिटन क्यों आया है. वर रिटन इसलिए आया है क्योंकि पैसिव वॉइस में, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और रोट है इसलिए पास्ट है, तो पास्ट के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी. रोट के आया है तो वर रिटन आएगा. Now next है, the preposition by is used before the subject of the verb. In the active voice, it is not always necessary to include by plus agent phrase in the passive voice. इधर कह रहे हैं जो preposition by यूज होता है हमेशा subject के साथ, मतलब उस subject के साथ जो object बन जाता है passive voice में, मतलब वो ये बात कह रहे हैं कि मतलब before the subject. Wait a minute, let me show you the slide. Yeah, here we are in the second point. The preposition by is used before the subject of the verb. इसलिए यूज मतलब जो subject of the verb के हमेशा active voice के subject के आगे ही लगता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी. कोई मतलब कि कोई मतलब ये वो नहीं है कि आपको लगाना ही लगाना है डूअर के साथ ये phrase in the passive voice. Let's take an example. The secretary fixed all the appointments
एक्टिव है ये। अब हम इसे कैसे ऑल द अपॉइंटमेंट्स आर फिक्स्ड बाय द सेक्रेटरी, इट्स पैसिव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट, द वर्ब द एक्टिव वॉइस इज चेंज्ड टू अ सुटेबल ऑक्सिलरी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। या अब ये जो मैं आपको बता रही थी ऊपर, यही यहाँ पे आया है। द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है सुटेबली टू ऑक्सिलरी, मतलब उसी का जो होती है, मतलब उसी के सुटेबली, मतलब जैसे कोई अभी था वेरिका रोट, ये जो सेंटेंस था वेरिका रोट 3 letters and 3 letters were written by वेरिका। here we have to use auxiliary plus, here auxiliary plus past participle. Past participle is third form of the verb, and here you can see 3 letters were written by Venika. Here you can see that Venika wrote 3 letters. So here wrote है, तो suitably हमने wrote के साथ wrote को written बना के word लगा दिया because it is a past word. अगर होता Venika write 3 letters, Venika write 3 letters, so हम लिखते the 3 letters are written by Venika. So let's move on to the next one. आप देख सकते हैं अभी आगे form of the verb. Okay, now let's read out the next point. The changes of the we are here. The changes of the verb will also depend we are here also depend on the tense of the verb in active voice and the number of the noun or pronoun that agrees with the verb. So जो changes आते हैं verb में वो depend करता है उसके tense पे, वर्ब के टेंस पे, एक्टिव वॉइस के वर्ब पे टेंस पे, एट द नंबर ऑफ द नाउन और प्रोनाउन दैट एग्रीज, जो एग्री करता है वर्ब के साथ उस पे। लाइक एग्जाम्पल देख लो आप, आई हैड ऑलरेडी डिपोजिटेड ऑल द ड्यूज, एक्टिव है ये, तो आपके साथ हैड आया है, आई के साथ हैड आया है, तो हम क्या लिखिए ऑल द ड्यूज हैड ऑलरेडी, पहले तो ऑब्जेक्ट जो है ऑल द ड्यूज उसे सब्जेक्ट बना लेंगे, अब ऑल द ड्यूज लिखेंगे पहले एंड देन हैड लिखेंगे और फिर ऑलरेडी लिखेंगे, हैड ऑलरेडी, डिपॉजिट का हो जाएगा बीन डिपॉजिटेड। अब मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ, देखो इस पॉइंट का मतलब है कि आपको मतलब आपको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करने होंगे टेंसेस। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अब देखिए मैंने आपको कहा अभी जो सेंटेंस हमने लिया था जो था आई हैड ऑलरेडी डिपोजिटेड ऑल द ड्यूज, उसमें जो पैसिव बनाया हमने वो हमने बनाया था ऑल द ड्यूज हैड ऑलरेडी बीन आया था उधर। इफ़ यू हैव नोटिस तो उधर बीन डिपोजिटेड आया था बाय मी, तो उधर बीन इसलिए आया था क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस में परफेक्ट के साथ, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, हमेशा परफेक्ट के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ हम बीन लगा के देन हम जो भी हमें वर्ब दी हुई होती है उसको अकॉर्डिंगली थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। हमेशा थर्ड फॉर्म तो लगती है पैसिव वॉइस में, चाहे वो फर्स्ट चाहे वो पास्ट हो, परफेक्ट हो या प्रेजेंट हो, प्रेजेंट हो, सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल परफेक्ट हो, कुछ भी हो, पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, कुछ भी हो हमें थर्ड फॉर्म में लगानी है, या कॉन्टिन्यूस भी हो तो तभी हमें परफेक्ट ही लगानी है। कॉन्टिन्यूस का भी मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगी जिससे आपको समझ आ जाएगा। कॉन्टिन्यूस में हमेशा बीइंग लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है। लाइक अभी मैंने आपको एक सेंटेंस बताती हूँ जिसमें हम क्या देखेंगे, एक मिनट आपको सेंटेंस बताते हैं। लाइक एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ जिस प्लीज़ उसे केयरफुली सुनिएगा क्योंकि वो एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और मैं उसे आपको बताऊंगी कैसे आप उसको चेंज करोगे पैसिव वॉइस में। एक एक्टिव वॉइस का आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मैं बताने जा रही हूँ एक सेंटेंस। नाउ वी विल चेंज इट इन द पैसिव वॉइस। ओके, तो एक मिनट रुकिए। ओके, शबनम इज बेकिंग द कपकेक्स फॉर द competition. Shabnam is baking the cupcakes
फॉर द कॉम्पिटिशन लेट्स राइट इट ऑन द स्क्रीन बिकॉज आपको फिर क्लियर नहीं होगा. अब मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा है. शबनम इज बेकिंग द कपकेक्स फॉर द कॉम्पिटिशन. इट्स एक्टिव वॉइस और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है. वैसे आप टेंशन मत लो, मैं आपको एक पूरा चार्ट दिखाने वाली हूँ जिसमें रूल्स ऑफ कन्वर्जेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस वेरियस टेंसेज में, इन वेरियस टेंसेज सब आपको उसमें है. तो आप कोई टेंशन मत लो कि मुझे कैसे समझ में आएगा, हाउ आई विल गेट टू नो इट. मैं तो बस डायरेक्टली बता रहे हैं मैम तो, एंड हाउ विल गेट टू नो इट in other tenses also. Don't be tension because I'm going to show you a chart in which it's a simple thing that it means directly मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ वरना मैं आपको पूरा चार्ट दिखाने वाली हूँ. so don't be tension about it. okay, तो अब let's focus on this present continuous sentence. the active voice, Shabnam is baking the cupcakes for the competition. इसका क्या होगा, can you tell? पहले बात तो ये है कि हमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर? सब्जेक्ट इज शब्दम, वर्ब इज बेकिंग एंड ऑब्जेक्ट इज द कपकेक्स. सो द कपकेक्स इज ऑब्जेक्ट. वेट अ मिनट. सो हेयर आप देख सकते हो ये जो लिखा हुआ है ये है शबनम इज बेकिंग द कपकेक्स फॉर द कॉम्पिटिशन. एक्टिव वॉइस का है ये. तो ये जो कपकेक्स है, द कपकेक्स, इट इज ऑब्जेक्ट एंड देन इज बेकिंग इज द वर्ब, शबनम इज द सब्जेक्ट. तो अब हम पहले तो ऑब्जेक्ट लेंगे फर्स्ट में, वो है द कपकेक्स. लिखेंगे द कपकेक्स, राइट, कपकेक्स. ठीक है, फिर आगे हम लिखेंगे इज बेकिंग. लिखेंगे इज बेकिंग का मैंने आपको क्या बताया था पैसिव वॉइस में क्या चेंज होगा. वैसे पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो है द कपकेक्स फॉर द कॉम्पिटिशन, तो हम पूरा ही लिख देते हैं या हम लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं इसे. तो आपकी मर्जी है, आप इसे फर्स्ट में ऐड करिए लास्ट में, तो मैं लास्ट में ही ऐड कर दूंगी इसे. अभी द कपकेक्स, अब क्या करेंगे आप, इस तो ईजी रहेगा. मैंने आपको बताया अभी, आई टोल्ड यू दैट कॉन्टिन्यूअस के साथ बीइंग आता है. तो फिर कपकेक्स के साथ भी अब द कपकेक्स इज बीइंग. देन थर्ड फॉर्म ऑफ द बेकिंग इज बेक्ड बाय शबनम फॉर द कॉम्पिटिशन. ओके, बस इतना ही है ये. ओके, अब मैं आपको चार्ट शो कर देती हूँ, उससे आपको और अच्छा समझ आएगा. चलो, ओके. सो दिस इज द रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस इन वेरियस टेंसेस. आपको अब कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं लेने की ज़रूरत है बिकॉज दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू. ऑल थिंग इज रिटन हियर. आपको कौन से टेंस में व्हाट यू हैव टू चेंज इन एक्टिव वॉइस फ्रॉम पैसिव वॉइस, एवरीथिंग इज रिटन हियर. गाइज, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस वीडियो एंड यू कैन लर्न इट बाय योर ओन सेल्फ. यहाँ पे कुछ नहीं ज़्यादा दिया हुआ है. सिंपल प्रेजेंट का क्या चेंज है वो दिया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, सिंपल पास्ट का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, देन सिंपल फ्यूचर का, देन दिस इज फ्यूचर continuous and future perfect, and the future perfect continuous cannot be changed into passive voice. ये आप पढ़ लेंगे. एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर एक बार थॉरली रीड करिएगा, सो यू विल गेट टू नो व्हाट इन द चार्ट देयर इज रिटन. सो गाइज, एक और बार मैं आपको ये शो कर रही हूँ स्लाइड. ये वाली स्लाइड है एक. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एज यू कैन टेक इट एंड यू कैन लर्न फ्रॉम इट. दिस इज द सेकेंड स्लाइड. अब इस चार्ट को आप इतने अच्छे से समझिए, मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ओनली यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू इज आपको ये चार्ट एक बार थॉरली रीड करना है. यू विल लाइक
whenever you get any question, you will say, what is this question? It's too easy, because you have learned all the ways how to change it, all the formulas, all the rules. Okay. So guys, that's all in this video. Hope you like this video. Have a good day. Stay fit and healthy. Stay at home. Stay tuned. And don't forget to subscribe, share and like. Have a good day guys. Stay safe and healthy. Bye guys.